بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گھر میں سب کی لاڈلی تھی، سب لوگ مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ ایک دن بھائی مجھے سیر کروانے لے گئے، لیکن وہ مجھے ایک بہت دور سنسان جگہ پر لے گئے۔ مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا اور پھر میرے ساتھ کسی نے زبردستی کی۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ پھر اگلے دن کوئی آدمی میرے پاس آیا، میں نے اس کو دھکا دے کر جلدی سے لائٹ آن کر دی اور میرے جسم سے جان نکل گئی۔ وہ آدمی تو میرا نام پری زاد ہے، لیکن سب لوگ مجھے پیار سے پری کہتے تھے کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنے گھر کی بھی پری تھی۔ دراصل ہماری بہت بڑی حویلی تھی اور میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن میں اپنے باپ اور اپنے دادا کی لاڈلی تھی۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک ہی ایسا شخص ہوتا ہے جو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن میری زندگی میں ایسے دو شخص تھے، جس میں ایک میرا باپ تھا اور ایک میرے دادا۔ میرے دادا کی عمر یوں تو کافی زیادہ تھی، لیکن امیر لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ میرے دادا بھی ایسے ہی تھے اور 85 سال کی عمر میں بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی چال میں شاہانہ انداز اور رعب اور دبدبہ تھا۔ ہمارا گھر مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہمارے گھر میں صرف ہمارے ایک چاچو تھے جن کی ایک بیوی اور ان کے 3 بیٹے تھے، اور میرے اپنے 5 بھائی تھے۔ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور ایک محبت کرنے والے دادا کی پوتی کے ساتھ ساتھ ایک بادشاہ جیسے باپ کی بیٹی بھی تھی۔ میری زندگی میں تو کوئی کمی نہیں تھی، بہت زیادہ خوش تھی۔ اپنی زندگی سے جو مانگتی تھی مجھے مل جاتا تھا۔ سب بہت پیار کرتے تھے، سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ اچھے اسکول اور اچھے کالج میں پڑھنے کے بعد میں نے FSC میں پری میڈیکل کیا تھا۔ میری عمر 18 سال ہو گئی تھی، لیکن اس خاندان میں اس سے زیادہ لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں تھے، اس لیے میں گھر میں تھی اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ میرے پاس دنیا کی ہر چیز تھی۔ لیکن اچانک ہی میرے دادا کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی اور ایسا لگنے لگا کہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ میرے دادا بستر مرگ پر پڑ گئے تھے، لیکن کہتے تھے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی مجھے کچھ نہیں ہونے والا، کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اتنی آسانی سے نہیں جاؤں گا۔ دراصل میرے دادا آرمی میں بھی رہ چکے تھے اور اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی محنت سے حویلی، گھر، سب کچھ بنایا تھا۔ بہت بڑا کاروبار تھا، ہماری کروڑوں کی جائیداد تھی۔ ہمارے دادا بیمار ہوئے تو حصہ کرنے کی بات آنے لگی۔ دادا نے کہا کہ جس طرح بھی حصے ہوتے ہیں شریعت میں اور جس طرح بھی معاشرے میں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں اپنی جائیداد کے حصے بھی اپنی الگ اور دبنگ انداز میں ہی کروں گا اور ساروں کو اس سے راضی ہونا پڑے گا۔ میرے بابا نے کہا کہ بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میرے بابا بھی اسی سوچ کے مالک تھے، لیکن اس بات پر میرے چاچو نے تھوڑا اختلاف کیا اور میرے بھائیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب اس گھر میں اتنے اصول ہیں، دستور ہیں، تو پھر آپ لوگ اتنے اہم موضوع پر اصول اور دستور کو یہاں تک کہ شریعت کو بھی ایک طرف رکھنے پر کیوں راضی ہو گئے ہیں، جبکہ آج تک اس گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے؟ تو میرے دادا نے کہا کہ بیٹا، اگر میں دستور اور شریعت کے حساب سے فیصلہ کرنے پر آ گیا نا تو تمہیں بہت کم حصہ ملے گا، اس لیے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں اپنے خاص انداز میں حصہ کر رہا ہوں۔ ہماری جائیداد تو کروڑوں کی تھی اور اس کے وارث کافی سارے بنتے تھے۔ میرے چاچو، میرے بابا، ان کے چاچو کے 3 بچے، میرے 5 بھائی اور مجھے ملا کر ٹوٹل 11 لوگ۔ میرے دادا نے کہا کہ جمعے کے دن شام کی نماز کے بعد میں اپنی وصیت سناؤں گا اور تب تک میں تم سب پر نظر رکھوں گا۔ اگر تم لوگوں کی مجھے کوئی ایسی بات نظر آئی جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگا کہ تم لوگ اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہو تو میں اپنا فیصلہ بھی بدل دوں گا۔ میرے سارے بھائی آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ دادا نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے، جو کرنا ہے کریں اور آرام سے بیٹھیں، سانپ بن کر بیٹھ گئے ہیں جائیداد پر۔ میں نے ان کو کہا کہ ایسی بات نہیں کرو، دادا کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ میرے بھائیوں نے کہا کہ کسی کے مرنے کے ساتھ کوئی نہیں مرتا، دادا چلے جائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ تمہاری شادی چاچو کے بیٹے جنید کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ تو بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اس معاملے میں مجھے کچھ نہیں بولنا چاہیے، اگر میرے دادا اور بابا کی مرضی ہوئی تو شادی کر لوں گی۔ میرے بھائیوں کو پتہ نہیں دادا سے اتنی نفرت کیوں ہو گئی تھی۔ میں تو بہت زیادہ پریشان تھی اور روز دعائیں کرتی تھی ان کو کچھ نہ ہو۔ وہ نہ صرف میرے دادا بلکہ میرے بہت اچھے دوست بھی تھے، ہمیشہ مجھے اچھی بات بتائی انہوں نے، ہمیشہ میرا خیال کیا تھا۔ ابھی بہت پریشان تھے، بابا بھی کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم ان کا اچھے ہاسپٹل سے علاج کروائیں گے۔
लेकिन अगर वो वसीयत लिख रहे हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। जुमे वाले दिन जब दादा ने वसीयत सुनाई थी तो उसके 2 घंटे पहले हमारे घर में अचानक से एक आदमी आया जो बहुत ज्यादा जख्मी था और पानी मांग रहा था। मेरे भाई, मेरे चाचू के बेटे, हम सब लॉन में बैठे थे और इसी बारे में बात कर रहे थे कि कब वसीयत सुनाएंगे। सब लोग अपना अपना तबसरा दे रहे थे कि पता नहीं क्या करने वाले हैं, सारी जिंदगी अजीब हरकतें की हैं। एक कज़न ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इस तरह के लोग बड़े अजीब होते हैं जो हर किसी को अपना दुश्मन समझते हैं और उनको ज़ेर करने की कोशिश करते रहते हैं। जब वो शख्स नजर आया तो सबने उसे देखा। मैं भी फौरन उसकी तरफ बढ़ी और मैंने कहा कि देखा, नौकर को कहो जाओ जाकर पानी लेकर आए। मेरे भाइयों ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? एक गैर इंसान अचानक से घर में आ गया और तुम उससे सामने आ गई हो और उसकी मदद करने चली हो। मैंने कहा कि ये तो देखो, ये जख्मी है, मरने वाला है। मेरे भाइयों ने कहा कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इसकी मदद करने की। मेरे भाई ने मेरी कलाई को काफी मजबूती से पकड़ा और मुझे उठाकर वहाँ से दूर कर दिया और नौकरों से कहकर उसको बाहर भिजवा दिया। ये काम मेरे बड़े भाई ने किया था जिसका नाम हमजा था। मैंने कहा कितनी बुरी बात है, वो पानी मांग रहा था, कितनी बुरी हालत थी उसकी और तुमने उसे बाहर फेंक दिया। तो भाई ने कहा कि पानी उसको बाहर भी दे सकते हैं, जबकि उसे किसी ने भी पानी नहीं दिया था। मैं काफी देर उसके बारे में सोचती रही। फिर दादा ने हमें बुला लिया। दादा ने सबसे पहले हमें ये कहा कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि मैं तुम्हारे रवैये पर नजर रखूंगा और वो जख्मी आदमी अंदर कमरे में आया, वो मैंने ही भेजा था। वो जख्मी नहीं था, अदाकारी कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम लोग क्या करते हो। सिर्फ मेरी प्यारी परी ने उसकी मदद करने की कोशिश की, बाकी तुम लोगों ने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। इतने बदइखलाक हो तुम सब। लेकिन खैर, ये तो बात की बातें हैं। बेरहम बनोगे तो अपना ही नुकसान उठाओगे। और अब एक बात याद रखना कि इस बात का तुम लोगों की वसीयत पर असर जरूर पड़ेगा। मेरे सारे भाई हैरान रह गए और मैं भी, लेकिन वो परेशान भी थे क्योंकि उनका रवैया दादा देख चुके थे। और दादा ने सबको अपनी वसीयत सुनाई। वसीयत के मुताबिक दादा ने अपनी सारी जायदाद के 11 हिस्से किए। उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि किसी को आधा मिलेगा या किसी को पूरा। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, इसलिए सबको एक एक हिस्सा मिलेगा और मैंने 11 हिस्से किए हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये हवेली मेरे नाम कर दी थी। सब लोग इस बात पर हैरान थे, पर मेरे दादा ने एक बड़ी प्यारी बात कही। दादा ने कहा, बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं और हमारे खानदान में सिर्फ एक ही बेटी है, हमारी परी। एक दफा मेरी बीवी को मैंने एक बात कहते हुए सुना था। उसने कहा था कि हम औरतों का तो कोई घर ही नहीं होता। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो उसने कहा कि बाप के घर में रहते हैं तो सब कहते हैं कि बाप का घर है, एक दिन यहाँ से चली जाएगी। जब शादी हो जाती है तो फिर सब कहते हैं कि शौहर के घर से आई है, शौहर का घर है। कोई ये नहीं कहता कि इसका अपना घर है। उसके बाद शौहर इस दुनिया से चला जाए तो फिर उसके बेटे का घर हो जाता है। औरत का अपना कोई घर होता ही नहीं। मेरे दादा ने कहा कि उसकी मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी, मेरे दिल को लग गई थी। मैं अपनी बीवी के लिए ये घर बनाकर उसे हैरान करना चाहता था, लेकिन वो घर देख ना पाई और इस दुनिया से चली गई। इसलिए मैंने ये हवेली अपनी परी के नाम कर दी है, ताकि ये कभी ना सोचे कि इसका कोई घर नहीं है। इसलिए ये हवेली आज से मेरी प्यारी परी की है। मैं बहुत ज्यादा खुश हुई इस बात पर। मुझे अच्छा लगा कि मेरे दादा ने इतना सोचा मेरे लिए। मेरे बाबा ने भी कहा कि हाँ, इस मामले में मेरे से मशवरा किया था और मैंने भी कागजात तैयार कर दिए हैं। लेकिन बाकी सबके चेहरे अजीब से हो गए। मेरे दादा ने ये भी ऐलान कर दिया कि मेरी शादी जुनैद से होगी। दरअसल जुनैद मुझे पसंद करता था और मुझे मेरे दादा की पसंद पर अंधा एतमाद था। सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन मेरे दादा 2 हफ्ते बाद ही इस दुनिया से चले गए। ये दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे लिए तो ऐसा ही था कि जैसे मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है। न जाने कितने हफ्ते तक मैं अपने कमरे में कैद रही, लेकिन मेरे बड़े भाई हमजा ने कमरे में कदम रखा और उसने कहा, कब से रो रही हो? कब तक रोती रहोगी? दादा जिंदा होते तो वो ये ना चाहते कि तुम इस तरह रोती रहो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाता हूँ, सैर करने चलेंगे, तुम्हारा थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। मैंने अपने भाई से कहा कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें आना होगा। वो मुझे अपने साथ ले गए। मैंने कहा कि गाड़ी में ही इधर उधर घूमते रहते हैं, मुझे गाड़ी से बाहर नहीं निकलना। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने गाड़ी एक सुनसान इलाके में रोक दी और मुझे एक घर दिखाया। उन्होंने कहा कि ये घर देखो, मैंने खरीदा है। दादा ने ये भी कहा था कि बेटे तो कभी न कभी अपना घर बना लेते हैं, लेकिन मैं बेटी का अपना घर होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने लिए घर खरीदा है। मैंने भाई को कहा, ये तो बड़ा पुराना लगता है और सुनसान इलाके में है। तो भाई ने कहा कि हाँ है तो ऐसा ही, तभी तो सस्ता मिल रहा है।
अब तुम्हारी तरह हमारे नसीब कहाँ, तुम तो हवेली की मालिक बन गई हो। हमें तो इसी तरह कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन ये घर मजबूत है, अगर इसके ऊपर कुछ लाख रुपए लग जाएं तो ये कहीं नहीं जाएगा 20-30 साल तक, और आसपास भी आबादी आ जाएगी। चलो अब घर के अंदर चलते हैं, अंदर से घर देखते हैं कैसा है। मैं जैसे अंदर दाखिल हुई कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरे भाई ने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने सामने देखा तो एक शख्स वहां खड़ा था जिसने मुझे दबोच लिया और मेरे साथ ज्यादती कर दी। उसने मेरी इज्जत लूट ली। मैं हैरान रह गई कि मेरे भाई ने मेरे साथ ये सब कुछ करवाया। थोड़ी देर के बाद मेरा भाई मुझे लेने के लिए आया और उसने कहा कि अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये बात किसी को भी पता चली तो तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मेरे साथ जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था और अब तो मेरी इज्जत लुट गई थी। जिस शख्स ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई थी। उसने नकाब किया हुआ था। मुझे लगा कि मेरा भाई ये बात किसी को नहीं बताएगा, लेकिन उसने हवेली पहुंचकर ही शोर कर दिया कि इसके साथ ये सब कुछ हो गया है क्योंकि ये अपनी किसी सहेली के घर गई थी जिसने इसको धोखा दिया। हम सब लोग ही बहुत ज्यादा दुख में थे और मेरा होने वाला शौहर, मेरा मंगेतर भी मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। मेरे चाचू ने शोर डाल दिया कि ये लड़की तो खराब हो गई है, अब ये हमारे घर में रहने के काबिल नहीं है और हम इसके साथ अपने बेटे की शादी भी नहीं करेंगे। मेरे बाबा घर पर नहीं थे, वो किसी कारोबारी डील के लिए घर से गए हुए थे। मेरा भाई ही पीछे बड़ा था। उसने कहा कि अब हम क्या करें, तो चाचू ने कहा कि इसकी शादी किसी और से करनी पड़ेगी, ये इस घर की बहू नहीं बनेगी, क्योंकि अगर इसकी शादी मेरे बेटे से हुई तो ये इसी घर में रह जाएगी और हम ऐसा नहीं चाहते। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसमें मेरा क्या कसूर है, जबकि असल बात बता नहीं रही थी क्योंकि अंदर से भी बहुत डरी हुई थी। मेरे भाई ने यह भी कहा था कि ये बात बाबा को भी ना पता चले, बस जुनैद शादी से इनकार कर देगा और हम उसकी शादी कहीं और कर देंगे। बहुत बड़ा तमाशा बन गया। मुझे सब अजीब नजरों से देख रहे थे। इस घर में सिर्फ मेरी चाची ही एक औरत थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे संभाला नहीं। अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हो गया और मेरे भाई ही मेरे साथ ये सब कुछ क्यों करवा रहा है। मेरा दिमाग इस तरफ नहीं जा रहा था। मैं कोई बात नहीं समझ पा रही थी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कैसे मेरा भाई होकर मेरे साथ ये सब कर सकता है। मुझे उस वक्त मेरे दादा की बहुत याद आ रही थी। अगर आज वो जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा कभी ना होता। और बाबा भी यहाँ पर नहीं थे। बाबा ने 3 महीने बाद आना था। पता नहीं 3 महीने बाद मेरा क्या होता। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं। रोते रोते मैं सो गई और इसी तरह दिन गुजरने लगे। 1 हफ्ते के बाद एक दिन मैं अपने कमरे में रात को सो रही थी, बल्कि सो क्या रही थी, बस रो रही थी कि अचानक से मुझे कुछ महसूस हुआ। ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कोई दाखिल हो गया है। मैं पूरी तरह डर गई और जब इंसान ने आकर मेरे चेहरे से चादर हटाई तो मेरी डर से चीख निकलने लगी, पर उसने मेरे चीखने से पहले ही मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा कजन जुनैद था। मैं घबरा गई और मैंने कहा, क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा कि चिल्लाना नहीं, अगर किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो बहुत बुरा होगा। मैंने कहा कि मेरे साथ इससे ज्यादा और क्या बुरा होगा, इतना बुरा तो हो गया है। उसने कहा कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती थी? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैंने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन तुम्हारे साथ शादी करने पर राजी थी क्योंकि तुम मेरे कजन हो और मैं इस घर में रहना चाहती थी। जुनैद ने कहा कि मेरी बात गौर से सुनो। जब दादा ने हवेली तुम्हारे नाम की और बहुत सारी जायदाद भी, तब से तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसने मेरे साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। उस वक्त मैं उसकी बातों में आ गया था। उसने कहा कि वो तुम्हें किसी सुनसान घर में ले आएगा और वहां पर ये पहले से मैं मौजूद हूँगा। मुझे अपना चेहरा छुपा कर रखना है और तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी है, लेकिन क्योंकि तुम मेरी ही होने वाली बीवी हो इसलिए इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा था कि उसके बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी और हम दोनों एक दूसरे के निकाह में आ जाएंगे, लेकिन घर आकर उसने अपनी बात बदल दी और अब वो तुम्हारी शादी किसी और से करवाना चाहता है। उसने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। उसने तुम्हें जानबूझकर बदनाम करवा दिया था ताकि तुम इस घर में ना रहो। तो जब तुम घर में रहोगी ही नहीं तो फिर ये घर तुम्हारा कैसे होगा? तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो घर बेच देगा। ये सब कुछ तुम्हारे अपने भाई ने किया है, मुझसे करवाया। मैंने अपने कजन के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अब हीरो बनने के लिए आ गए हो जबकि तुमने ये सब कुछ किया है। उसने कहा कि उसने मुझे धमकाया था और मैंने तो ये सब कुछ इसलिए किया था कि तुम मेरी बीवी बनोगी, इसलिए इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लड़की अभी तुम्हारी निकाह में नहीं है तुम उसकी इज्जत खराब कर दो। किस किस्म के घटिया इंसान हो तुम। उसने कहा कि मेरा भाई के साथ मेरा बाप और मेरे 2 भाई मिले हुए हैं। मैं बेशक घटिया और बुरा इंसान हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारा फायदा चाहता हूँ।
हमें ये बात किसी भी तरह तुम्हारे बाप को बतानी होगी और पुलिस को भी बतानी होगी। मैंने कहा कि पुलिस को बताएंगे तो फिर पुलिस तुम्हें भी पकड़ेगी। उसने कहा कुछ भी करना होगा, लेकिन बस मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। अगर हमारा निकाह हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें तो तुम्हारे बाप को ये बताना होगा और उनकी मौजूदगी में निकाह करना होगा। मैंने कहा कि मैं तुमसे कभी निकाह नहीं करूंगी। मैं बुरा इंसान हूँ, मेरे साथ निकाह नहीं करोगी तो फिर किसी और के साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये सारे जायदाद, कारोबार और पैसों के फंदे हैं, तुम नहीं समझोगी। तुम इस बीच में बिला वजह ही मारी जाओगी। मेरे साथ निकाह कर लो। मैंने कुछ देर इसके बारे में सोचा और अपने बाबा को फोन किया, उनको सब कुछ बता दिया। जुनैद ने भी उनसे बात की, वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि मैं अगले ही दिन आ रहा हूँ, लेकिन मैं घर में नहीं आऊंगा बल्कि एक दोस्त के घर आ रहा हूँ। तुम दोनों वहाँ किसी तरह पहुँच जाना। हम वहाँ पहुँच गए और बाबा ने अपनी निगरानी में हमारा निकाह करवा दिया। उसके अलावा बाबा के पास अभी भी एक इख्तियार था कि वो वसीयत को बदल सकते थे। उन्होंने वसीयत को बदला और मेरे भाई को जायदाद से आग कर दिया, जिसने अपनी बहन के साथ इतना कुछ करवाया। अब वो इस घर में नहीं रह सकता था। मेरे बाबा वापस आए और ये बात सबको बता दी। मेरे बाबा ने मेरे भाई को घर से निकाल दिया और चाचू को भी कहा कि वो भी यहाँ से चले जाएं तो अच्छा है, नहीं तो उनको भी जायदाद से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने सोचा कि जायदाद भी जाएगी हाथ से। वो अपनी बीवी और दोनों बेटों को लेकर वहाँ से चले गए, लेकिन जुनैद ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। जुनैद और मैं इसी घर में रहते हैं। बाकी के भाई भी यहीं पर रहते हैं, जिनको इस बात के बारे में पता नहीं था। और जब उनको पता चला कि भाई ने सब कुछ किया है, उनका कहना था कि अपने ही भाई की जान ले लेंगे, लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं करना, बस वो यहाँ से चला गया है, यही काफी है। बेटियों को उनके हक की जायदाद ना मिले तो उसके लिए लोग तो बेटियों को जान से भी मार देते हैं, और मेरे भाई ने सिर्फ मेरी इज्जत लुटवाई थी, वो भी मेरे ही मंगेतर से। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा, और ये सब कुछ मेरे साथ मेरे भाई करवाएगा। दादा ने जायदाद मेरे नाम करके मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कब तक हम लड़कियों के साथ ऐसा ही होता रहेगा। दादा ने मुझे मेरा शरई हक नहीं दिया, जो कि एक आधा हिस्सा बनता था। उन्होंने मुझे मेरे शरई हक से ज्यादा हिस्सा दे दिया था, और यही बात मेरे भाई को बुरी लगी थी कि कब तक जायदाद ना देने के लिए लोग अपनी बहनों और बेटियों को कुर्बान करते रहेंगे। लोग अपनी बहनों और बेटियों की शादी भी नहीं करवाते, इसीलिए कि अगर शादी हो गई तो जायदाद किसी और के पास चली जाएगी। न जाने कितनी लड़कियां बिना शादी के इस दुनिया से चली गई हैं। आपको ऐसी बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं, समझ में नहीं आता कि क्या करें, लेकिन हर जगह औरत ही क्यों पिसती है। मैंने जुनैद को माफ कर दिया है, क्योंकि अगर उसने गलती की तो उसने उसका अजाला भी किया। आज वो मेरा शौहर है, मैं उसके निकाह में हूँ, अपनी जिंदगी को किसी तरह गुजार रही हूँ। ये हवेली मेरी है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदाए पैमान, खुदाए पैमान।